Assalamu alaikum class 8. As we have studied in the beginning of the chapter that there are 7 continents in this world and there are 5 oceans also. Class, now we are going to study about the 5 oceans of the world. First of all, there are 5 oceans in the world and the name of these oceans are Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean and Southern Ocean. Class, Southern Ocean is also known as Antarctic Ocean. And class, these oceans further divide into seas, lakes, bays and gulfs. Class, you know seas and lakes very well. Bays are the broad inlet of the sea and gulfs are the deep inlet of the sea. Class, now we have Pacific Ocean. Pacific Ocean is the largest ocean of the world. And class, the Pacific Ocean looks very calm and serene. So that's why it is called Pacific, which means peaceful. Class, Pacific Oceans contains half of the Earth's free water. It means the total amount of water found in the Earth, the Pacific Ocean contains its half quantity. Class, it covers the area over 25% of the total Earth. Class, there are 2 nominal sections of Pacific Ocean. Class, nominal means it is just for name only and there are not 2 natural sections between Pacific Ocean. It is just given the name to them that there is a North Pacific and South Pacific Ocean. Class, Pacific Ocean contains islands more than 30,000 and it includes the small and the big both islands. And class, the significant islands of the Pacific Ocean are, it means the important islands of the Pacific Ocean are Philippines, it's a country, Japan is also a country and Hawaii is the state of United States of America. Class, Pacific Ocean has no good natural harbor, so that's why Pacific Ocean is not important for trade. Thus, now we have Atlantic Ocean, and Atlantic Ocean is the second largest ocean of the world. And the Atlantic Ocean has also 2 nominal sections, North Atlantic and the South Atlantic. Class, Atlantic Ocean is a significant sea highway. It means this ocean has great importance in terms of transportation. Class, Atlantic Ocean is surrounded by developed nations, so that's why it has also great importance in terms of trade. Class, the significant islands of Atlantic Ocean are Cuba and West Indies. And the famous seas of Atlantic Ocean are Caribbean Sea, Baltic Sea and Mediterranean Sea. Class, the famous bays of Atlantic Ocean are Hudson Bay and Gulf of Mexico. Now class, we have Indian Ocean, and class, the Indian Ocean is very near to us. Class, it is the 3rd largest ocean of the world and it contains numerous islands, and among them the largest islands are Madagascar and Sri Lanka. So that we come to know Sri Lanka is an island. Class, the Arabian Sea, Persian Gulf and Bay of Bengal, all these are the offshoots of Indian Ocean. And class, you know very well that Arabian Sea is very near to Karachi and all the coastlines of Arabian Sea are found in Karachi like Hawke's Bay, Seaview. These are all the coasts of Arabian Sea. So the Indian Ocean is very near to us. Class, now come to Arctic Ocean. Class, Arctic Ocean is the smallest ocean of the world and major portion of this ocean is frozen. Class, now we have our last ocean, that is the Antarctic Ocean, and it is also called the Southern Ocean. Class, because it is situated on the southern part of the earth. Class, the Antarctic Ocean remains frozen throughout the year and no navigation can be done here, so that's why there is no navigational importance of
this ocean, and there is also no economical importance of this ocean because no transportation can be done through this ocean because of frozen water. Class, we have studied about the 5 oceans of the world, and now we are going to study about the movements of sea. Class, first of all we have waves. Class, what are waves? आप बहुत बार सी साइड्स पे गए होंगे, आपने वेव्स को जो है वो देखा होगा कि वेव्स जो है वो आ रही होती हैं इस तरीके से। तो वेव्स जो है वो असल में क्या होती हैं और क्यों फॉर्म होती हैं सी में? When water starts rising up and down because of blowing wind, it is called waves. So class, waves are formed in the sea because of blowing wind. Now class, we have tides. Class, how tides are formed in the sea? Tides are the rise and fall of sea water because of the force of gravity of sun and मून। क्लास, टाइड्स जो है ये वो सी मूवमेंट है, असल में होता ये है कि जो सन और जो मून है इसकी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये ज़मीन को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करती है। क्लास, यू नो वेरी वेल अबाउट ग्रेविटी। क्लास, ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि चीज़ों को अपनी तरफ क्या कर रही होती है, पुल कर रही होती है। तो सन और मून की भी जो है वो अपनी जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो अर्थ की तरफ अर्थ को अपनी तरफ क्या कर रही होती है, पुल कर रही होती है, अट्रैक्ट कर रही होती है। लेकिन क्लास, यू नो दैट कि सन जो है वो तो बहुत फार्दर है, वो तो बहुत ज़्यादा दूर है, तो उसकी ग्रेविटी के जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स जो है वो अर्थ पर नहीं पड़ रहे होते। लेकिन जो मून है, यू नो दैट कि मून रिवॉल्व्स, it is a satellite and it revolves around the earth, so it is very near to us. तो क्लास, होता ये है कि मून जब अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है तो जो अर्थ का जो लैंड है यानी जो ज़मीन है, इट्स टू हैवी टू रिस्पॉन्ड द ग्रेविटी ऑफ मून। तो वो हैवी होने की वजह से वो तो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता या नहीं कर सकता है, लेकिन वाटर चूँकि जो है वो फ्री फ्लोइंग है अर्थ पर, तो वो इजीली उसको क्या कर रहा होता है, रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। तो जब वो मून की ग्रेविटी को जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहा होता है वाटर, तो इसकी वजह से जो सी में जो मूवमेंट हो रही होती है और हमें देखने में लगता है कि बहुत हाई वेव्स जो है वो आ रही हैं, तो ये जो मूवमेंट होती है सी की जिसमें वो रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं मून की ग्रेविटी को, और इसकी वजह से जो है वो बहुत हाई सी मूवमेंट हो रही होती है, इसको जो है वो हम क्या कहते हैं, टाइड्स कहते हैं। और अगर इसको फुली जो है वो ऑब्जर्व करना हो तो कभी फुल मून जब हो तो जब सी साइड जाइएगा तो आपको अच्छी तरीके से जो है वो समझ में आ जाएगा कि टाइड्स क्या होते हैं और कैसे होते हैं। प्लस नाउ वी हैव करंट। क्लास, एक तो करंट वो होता है बिजली वाला, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो हम ओशन करंट के हवाले से कर रहे हैं कि ओशन करंट क्या होता है। क्लास, द फ्लो ऑफ रिवर्स एंड सीज इज कॉल्ड ओशन करंट। समुंदर में भी बाकायदा जो है वो दरियाओं की सूरत में जो है वो पानी की मूवमेंट हो रही होती है, बाकायदा रिवर्स की फॉर्म में जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाकर जो है वो गिर रहे होते हैं। यानी कि इससे हमें ये मालूम हुआ कि रिवर्स सिर्फ ज़मीन के ऊपर ही नहीं फ्लो करते, बल्कि समुंदर के अंदर भी जो है वो बहुत सारे जो है वो रिवर्स जो है वो बह रहे होते हैं, यानी बाकायदा दरिया की सूरत में जो है वो पानी जो है वो मूव हो रहा होता है। तो इसको हम जो है वो कहते हैं ओशन करंट। लेकिन हम इसको डायरेक्टली जो है वो सीज वगैरह में ऑब्जर्व नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत जो है वो ये जो प्रोसेस हो रहा होता है बहुत डीप सीज में हो रहा होता है। ठीक है क्लास, जिसमें जो है वो रिवर की सूरत में जो है वो पानी बाकायदा जो है वो हैवी अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है फ्लो कर जो है वो जा रहा होता है। क्लास, here we have the reasons for the formation of ocean currents. How ocean currents are formed in the sea? Class, we have first difference in temperature. क्लास, असल में होता ये है कि जो हमारा इक्वेटोरियल रीजन है, यानी जो वो रीजन है जो कि अराउंड द इक्वेटर ऑफ अर्थ है, वो जो है वो कंपैरेटिवली जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो क्या होता है, हॉट होता है। जबकि जो पोलर रीजन्स हैं, यानी जो हमारे अर्थ का जो नॉर्दर्न रीजन और जो साउदर्न रीजन है, इट इज़ वेरी कोल्ड।
एंड यू नो द रीज़न कि इक्वेटोरियल रीजन पर जो है वो सनलाइट जो है वो डायरेक्टली जो है वो फॉल करती है वर्टिकली, जबकि नॉर्दर्न और साउदर्न रीजन पर जो है वो सनलाइट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं पहुंच रही होती, क्योंकि यहाँ पर जो है वो ये अर्थ का दूर दराज हिस्सा है। तो यहाँ पर जो है वो कुछ पोजीशन इस किस्म की अर्थ की कि सनलाइट यहाँ पर जो वो डायरेक्टली जो है वो फॉल नहीं कर रही होती। सो दैट्स वाई ये जो इक्वेटोरियल रीजन होता है बहुत ज़्यादा हॉट होता है। और क्लास ये जब कोई सी है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है वो हॉट टेम्परेचर हो, तो वो उस सी का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हाई होता है, सी लेवल उसका बहुत ज़्यादा हाई होता है अगर जो है वो वाटर जो है वो हॉट हो। और जो जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कम होता है, यानी जो कोल्ड जो वाटर होता है उसका जो लेवल होता है वो चूंकि हैवी वाटर होता है इसलिए उसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता और वो जो है वो सेटल डाउन होना जो है वो शुरू हो जाता है। तो क्लास होता यह है कि जब इक्वेटोरियल रीजन में जब हाई लेवल सीज होते हैं जिनका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब पानी हॉट होता है तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लाइटर, उसका जब पानी हॉट होता है तो वो लाइटर हो जाता है। तो लाइटर होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो पानी जो है वो मतलब आकर जो है वो एक जगह गैदर हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, सी लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। अब जब सी लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो फिर वो जो है वो जाहिर सी बात वो फ्लो करेगा और जो नॉर्दर्न हमारे पास जो पोलर रीजन की तरफ के जो सीज होते हैं उनका पानी हैवी होता है कोल्ड होने की वजह से, तो वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाता है। अब जब वो वहाँ पर वो हैवी वाटर सेटल डाउन होना शुरू हो जाता है तो एक स्लोप बन जाता है, एक बेसन, एक जगह बन जाती है। तो अब आपको तो अच्छी तरीके से पता है कि वाटर फ्री फ्लोइंग है और इसको जहाँ जगह मिलती है ये अपने आप को जो है वो क्या करता है, वहीं पर जो है वो वाटर जो है वो मतलब फ्लो हो जाता है, बहना शुरू कर देता है, उस जगह जाकर जो है वो गैदर होना शुरू कर देता है। अब जब एक तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा हाई सी लेवल हो, पानी बहुत ज़्यादा हो, दूसरी तरफ जो है वो हमें कोई स्लोप या कोई बेसिन या कोई जगह मिल जाए, तो अब जो जाहिर सी बात है जो बहुत ज़्यादा जो वाटर है वो उसको जगह मिल गई तो वो अब बहना शुरू हो जाता है तेज़ी से। तो इस तरीके से जो है वो ओशन करंट जो है वो फॉर्म हो जाता है और डिफरेंस इन टेम्परेचर जो है वो एक वजह बनता है ओशन करंट को फॉर्म करने की। एंड सेकंड वी हैव हाई एंड लो क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट। प्लस होता ये है कि जो एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर एवापोरेशन बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पर जो है वो जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट होता है वहाँ पर एवापोरेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से जब पानी ज़्यादा एवापोरेट हो जाता है तो सॉल्ट तो नीचे रह जाता है, सॉल्ट तो एवापोरेट नहीं होता, तो इसकी वजह से जो नीचे जो पानी बचता है उसमें सॉल्ट लेवल बहुत ज़्यादा जो है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है और पानी बहुत ज़्यादा जो है वो हैवी हो जाता है। अब जब पानी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है तो वो सेटल डाउन होना शुरू करता है। सेटल डाउन वो इस तरीके से हो रहा होता है कि वो नीचे से जो है वो फ्लो करना शुरू कर देता है उन एरियाज की तरफ जहाँ पर जो है वो पानी जो है वो लाइटर होता है। ठीक है क्लास, जैसे एक एग्जांपल मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन के, कि मेडिटेरेनियन सी में एवापोरेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ का जो वाटर में जो सी लेवल है, वहाँ के वाटर में जो सॉल्ट लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है और पानी क्या है वहाँ का हैवी है। फिर क्या होता है कि जब वो नीचे से सेटल डाउन होना शुरू होता है, नीचे से पानी दूसरी तरफ बहना शुरू होता है, तो अटलांटिक ओशन चूंकि उसका वहाँ पर जो है वो टेम्परेचर इतना हॉट नहीं है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा एवापोरेशन नहीं होती, वहाँ का पानी जो है वो लाइटर और फ्रेश है, तो इस वजह से जो है वो वहाँ पर आराम से जो है वो नीचे से जो बहना शुरू होता है, तो वहाँ पर बहकर जो है वो अटलांटिक ओशन की तरफ जा रहा होता है। तो ये जो बह रहा होता है ये रिवर की सूरत में बह रहा होता है, यानी ओशन करंट की सूरत में बह रहा होता है। तो इस तरीके से जो है वो हाई और लो क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट जो होती है वो भी जो है वो ओशन करंट्स को जो है वो फॉर्म करती है।